Hello my dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Today we are going to start grammar part, lesson number 1, parts of speech. Language is the best medium of communication through which we convey or express our ideas, feelings, thoughts and emotions to others. ठीक है, ਹੁਣ लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੋਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਤੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵਰਡਸ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨਡ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਪੀਚ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਵਰਡਸ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਰਡਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 8 ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਤੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी नेक्स्ट देखो, हाँ जी नंबर 1 नाउन्स, नंबर 2 प्रोनाउंस, नंबर 3 एडजेक्टिव्स, नंबर 4 वर्ब्स, नंबर 5 एडवर्ब्स, नंबर 6 prepositions, नंबर 7 conjunctions, नंबर 8 interjections। ठीक है, पहला तुसी पार्ट्स ऑफ स्पीच दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਦੀਆਂ 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ नेम स्पेलिंग्स याद कर लेने पहला भी केड़ियां 8 कैटेगरीज आ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं ਆਪਾਂ नाउन्स। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इवेंट और क्वालिटी। It is also not wrong to say that a noun is a name given to all that is seen, felt or heard। ठीक है, ਹੁਣ ਨਾउन ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ, ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾउन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਨਾउन। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੇਮਿੰਗ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾउन्स। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਨਾउन्स ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਨਾउन्स। ਸੁਰੇਸ਼, ਬੋਏ, ਮੁੰਬਈ, ਸਿਟੀ, रोज़, फ्लावर, डॉग, एनिमल, कॉटेज, गांधी जी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, पॉलिसी। ठीक है, इन द अबव सेंटेंसेस ऑल अंडरलाइंड वर्ड्स आर नाउन्स। समझ आ गई, जिन्ने भी अंडरलाइन वर्ड्स है सारे की आ, नाउन्स। ठीक है, नाउन क्लियर हो गया ना हुण। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट आ गया प्रोनाउंस। हाँ जी, प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun. Example, Chacha Nehru was our first prime minister. He was a great man. He had his education in London. It is a big city. Children went for a picnic but they returned late। हाँ जी, pronoun की ਹੁੰਦਾ, pronoun एक ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਪੜਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾउन ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਏ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ, ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਨਾउन। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
यूज़ होंगे। शी वॉन्ट्स मी टू टीच यू म्यूजिक। Rose is a beautiful flower, but it has thorns. In the above sentences, all words in bold are pronouns. ठीक है, हुण आ जिन्ने भी बोल्ड वर्ड्स हैगे ये सारे की हैगे आ प्रोनाउन। मतलब जिद्दां आई, माई, माइन, ही, शी, इट, यू, योर्स, वी, अस, आवर, है ना, ये सारे की आ प्रोनाउंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव्स। हाँ जी, an adjective is a word that describes a noun or pronoun or adds to its meaning. It qualifies a noun or a pronoun. हाँ जी, हुण जिहड़ा एडजेक्टिव हुंदा, ठीक है, उहनूं आपां की कहदे ने पंजाबी च विशेषण। ठीक है, जिहड़ा शब्द किसी भी नाउन दी जां प्रोनाउन दी की दसदा आपां नूं विशेषता दसदा। ठीक है, उहनूं आपां की कह दिंदे आ एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। हुण जिहड़ा ग्रेट वर्ड आ वो की आ एडजेक्टिव आ, वो किहदी विशेषता दस रहा आपां नूं कंट्री दी, है ना, इंडिया दी दस रहा। अगे इसी तरह जिन्ने भी बाकी अंडरलाइन वर्ड्स हैगे आ वो सारे की आ एडजेक्टिव। जिस तरह मैनी, 30, हैंडसम, यूजफुल। ठीक है, इन द अबव सेंटेंसेस ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये सारे की आ एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट की आ गया वर्ब्स, है ना। हुण वर्ब्स की हुंदी आ क्रिया। अ वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। इट डिनोट्स एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। दे आर डूइंग और सेइंग वर्ड्स। दे हाईलाइट समथिंग डन और सेड अबाउट अ सब्जैक्ट। हाँ जी, हुण वर्ब की हुंदा अजिहा शब्द, है ना, जिहदे तो किसी काम दे होण बारे आपां नूं पता लगे जां काम दे करन बारे पता लगे, है ना, जो भी जिहड़ा डूइंग वर्ड्स हुंदे आ। ठीक है, जिन्ने भी एक्शन वर्ड्स हुंदे आ वो सारे की आ वर्ब्स हैगियां, क्रिया हैगियां, है ना, जिहदे तो आपां नूं पता लगदा भी किहड़ा काम हो रहा। ठीक है, वो की हुंदियां वर्ब। हुण इहदे च जिन्ने भी अंडरलाइन वर्ड्स आ देखो, रीड्स, न्यू, इज़, हेल्प्ड, प्लेज, फील्स, वॉज। ठीक है, ये सारे की हो गई वर्ब्स हो गई, ये की हो गई क्रिया। ठीक है, जो भी मतलब आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, है ना, वो सारियां की हो गई वर्ब्स हो गई। उस तो बाद देखते हैं, हाँ जी, नैक्सट आ गया एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की होंगे हुण एडवर्ब्स नूं आपां की कह दिंदे आ क्रिया विशेषण। ठीक है, जिहड़ी किसी क्रिया की विशेषता दसदे आ। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. In other words, adverb is used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverbs. ठीक है, हुण adverb की हुंदा अजिहा शब्द जिहड़ा किसी verb दी, adjective दी जां किसी भी adverb दी की दसे विशेषता दसे। ठीक है, उहनूं आपां की कह दिंदे आ एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ठीक है, जिस तरह हुण आ वर्ड्स हैगे सारे ब्रिस्कली, पोलाइटली, वेरी, केयरफुली, लेट, इनसाइड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स की हैगे आ एडवर्ब्स हैगे आ, जिहड़ी कि इत्थे जिन्नियां भी वर्ब्स आईयां उहदियां ओह की दस रहे आ विशेषता दस रहे आ। ठीक है, किसी भी वर्ब दी भी दसदे आ, किसी एडजेक्टिव दी भी दस सकदे जां किसी होर एडवर्ब दी भी दस सकदे आ। ठीक है, चलो नैक्सट आ गया तुहाडा प्रेपोजिशनस। हाँ जी, हुण प्रेपोजिशन की हुंदी आ। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और persons. It is placed before a noun or a pronoun that it is to govern. It indicates some relation between the noun or pronoun to some other words. हाँ जी, हुण प्रैपोजिशन जिहड़ी आ वो एक अजिहा शब्द हुंदा जिहड़ा कि दो ऑब्जैक्ट्स दे विच जां दो पर्सनस दे विच की रिलेशन आ, ठीक है, संबंध दसदा ते इह नाउन या प्रोनाउन तो पहला यूज़ हुंदा, ठीक है, ते नाउन ते प्रोनाउन दा दूसरे वर्ड्स दे नाल एक रिलेशन दसदा, ठीक है। मीनस प्रैपोजिशन एक अजिहा शब्द जिहड़ा किसी नाउन जां प्रोनाउन तो पहला लगदा ते जिहड़ा उन्हां दा संबंध वाक दे विच जिहड़े होर वर्ड्स हुंदे आ, ठीक है, उन्हां दे नाल उहनूं जोड़दा आ जां उन्हां दे बारे
दसदा आ। ठीक है, हुण एग्जाम्पल देख लो, द पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल। हुण जिहड़ा पेन आ, इत्थे एक पेन आ ते एक की आ टेबल। हुण इन्हां दोनां दे विच जिहड़ा रिलेशन दस रिहा वर्ड वो की हैगा ऑन, कि द पेन इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, कि पेन कित्थे पिया, टेबल दे उपर पिया। ठीक है, इस तरीके नाल जिहड़े होर वर्ड्स हैगे आ विद, इन, एट, ऑफ, फ्रॉम। ठीक है, ये सारे भी की है प्रपोजिशंस है। ठीक है, हाँ जी, नैक्सट देखते हैं कंजंक्शंस। हाँ जी, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे हेल्प अस इन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड ईवन सेंटेंसेस। हाँ जी, कंजंक्शंस नूं आपां कह दिंदे आ जिहड़े जॉइनिंग वर्ड्स हुंदे आ, जोड़न वाले है ना, शब्द योजक। ठीक है, जिहड़े कि अपनी हैल्प करते हैं शब्दां नूं जोड़न च, फ्रेजेस नूं जोड़न च, क्लॉजेस जिहड़ियां हुंदियां जां सेंटेंसिस नूं आपस दे विच जोड़दे आ, इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ कंजंक्शन। ठीक है, हुण एग्जाम्पल देखो, जिम एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। हुण जिम ते सीमा दो जणियां दे नेम आ गए ना, इन्हां दे विच दोनां दे विच जोड़न दा काम किहने कीता, एंड। ठीक है, सो एंड की है, एक कंजंक्शन है। दूसरे जिहड़े होर एग्जाम्पल्स आ वो भी देख लो, यू विल गेट थ्रू इफ यू वर्क हार्ड। हुण इच इफ की है कंजंक्शन। ही रैन फास्ट बट कुड नॉट कैच द बस। अगे, ही वॉज rebuked because he was late. Number 5, although he is handicapped yet he is very hard working। हुण इहदे च although ते yet दोने की हैगियां कंजंक्शनस हैगियां। ठीक है, इन्हां दे विच तुहानूं वैसे सारे अंडरलाइन कीते ही होए आ, इसलिए मैं तुहानूं ये ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ही दस रही हाँ इन्हां बारे, क्योंकि ऑलरेडी आंसर्स दिते ही होए आ। नंबर 6, इधर सीमा और रीटा इज़ एट फॉल्ट। हाँ जी, इधर ते और। इन द वर्ब सेंटेंसिस ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजंक्शन। हुण इहदे च भी जिन्ने अंडरलाइन वर्ड्स ये सारे की हैगियां कंजंक्शनस हैगियां। ते लास्ट पार्ट आ गया इंटरजैक्शंस। ठीक है, द वर्ड which is used to express some sudden feeling or emotion is called an interjection। हाँ जी, हुण अजिहा शब्द जिहड़ा अपने मन च जदों अचानक कोई फीलिंग्स निकलदियां, भावनावां है ना, उन्हां दे ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। It is used to express an outburst. It has no grammatical connection with the remaining sentence। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਹ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ शब्द हुंदा है इंटरजैक्शन। ठीक है, जिहड़ियां सडन फीलिंग्स अपने मन चों निकलदियां उन्हां दे लई जिहड़े वर्ड यूज़ हुंदे आ उन्हां नूं आपां इंटरजैक्शन कह दिंदे आ। ठीक है, इत्थे भी देख लो जिहड़े वर्ड अंडरलाइन है सारियां की हैगियां इंटरजैक्शन। अलास, ओ, हुरा, लो। इन द वर्ब सेंटेंसिस ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर इंटरजैक्शंस। ठीक है, हुण ये सारे अंडरलाइन वर्ड्स की हैगे आ, इंटरजैक्शंस। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉੱਪਰ एग्जाम्पल, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਡ एग्जाम्पल ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਤਾ। 8 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਨਾउन ਕੀ ਆ, प्रोनाउन ਕੀ ਆ, वर्ब्स ਕੀ ਆ, एडवर्ब्स ਕੀ ਆ, एडजेक्टिव ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, प्रैपोजिशंस ਕੀ ਆ, इंटरजैक्शंस ਕੀ ਆ, कंजंक्शंस ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ठीक है, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, हुण एक्सरसाइज देखो, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच टू विच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसिस। हाँ जी, हुण आ तुहानूं नीचे 8 सेंटेंसिस दिते हुए आ। ठीक है, एक एक वर्ड हरेक दे विच ही अंडरलाइन किया होया है ते ये अंडरलाइन वर्ड नूं तुसीं ये देखना पहलां तां कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दी किहड़ी कैटेगरी आ ये। ठीक है, जिहड़ियां आपां उपर हुणी पढ़ीआं ਇਹ वाले वर्ड्स ਕਿਹੜੀ कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1, ਸੀਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਕੀ ਆ ਇਹ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੀ ਆ, ਐਡਜੈਕਟਿव। ठीक है, विशेषण। ठीक है, नंबर 2 ते की है अलास, ये आपां हुणे कीता। अलास की है इंटरजैक्शन। लिख लेना इधर जिहड़ी स्पेस दित्ती होई है ना सामने, उत्थे तुसीं लिखी जाना है।
अगे आ गया नंबर 3, द सन सैट्स इन द वैस्ट। हाँ जी, हुण इत्थे सैट्स वर्ड आ, सैट्स का मतलब की आ, छुपना है ना, तो फिर ये की हो गई वर्ब। ठीक है, इधरली साइड की लिख दो 3 नंबर की स्पेस च वर्ब। अगे आ गया नंबर 4, द लायन इज़ ए फेरोशियस एनिमल। हुण फेरोशियस वर्ड की हैगा, एडजैक्टिव। ठीक है, अगे आ गया नंबर 5, दिल्ली इज़ अ वेरी बिग सिटी। हाँ जी, हुण सिटी की हैगा, एडवर्ब है ना। ठीक है, बिग सिटी, एक ही आ गया एडवर्ब। नंबर 6, रहीम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। हाँ जी, हुण बट जिहड़ा वर्ड आ ये की हैगा, कंजंक्शन। अगे आ गया नंबर 7, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ जी, ऑनेस्टी वर्ड की आ गया, नाउन। ठीक है, अगे नंबर 8, द कैट इज़ अंडर द टेबल। हुण अंडर वर्ड की आ, प्रैपोजिशन। ठीक है, सो ये सी इन्हां दे आंसरस आ जिहड़ियां स्पेस दित्ती हुई आ, इन्हां च तुसीं ये फिल कर लेना। ठीक है, चलो नैक्सट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिस विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। हाँ जी, सब तो फर्स्ट कैटेगरी आपां नाउन्स पढ़िया सी है ना, नाम, तो इन्हां दे विच तुसीं कोई भी नाउन्स जिहड़े आ वो फिल कर सकते हैं। नंबर 1, डैश इज़ अ गुड बॉय। हाँ जी, कोई भी नेम लिख दो, अपने किसी फ्रेंड का नेम लिख दो, अपना नेम लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख दो कुछ भी मर्जी, सुरेंद्र इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, नाउन फिल करना आप कोई मर्जी नाउन बॉय का है ना, वो लिख सकते हैं इत्थे। अगे शी गोज़ टू द डैश एवरी डे। हाँ जी, वो कित्थे जाती है रोज़, टैंपल भी हो सकता है ना, गुरुद्वारा भी हो सकता। ठीक है, पार्क भी हो सकता, कुछ भी लिख सकते हैं इत्थे। अगे नंबर 3, दे गो फॉर अ डैश डेली। वो कित्थे जाते हैं रोज़, वॉक करन भी जा सकते है ना, दे गो फॉर अ वॉक डेली। अगे डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल की है, दिल्ली है ना। ठीक है, दिल्ली लिख दो। अगे आ गया नंबर 5, डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया, द डैश राइजेज इन द डैश, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हाँ जी, नंबर 7, चंडीगढ़ इज़ द डैश ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ की है पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल। ठीक है, आ गया नंबर 8, शिमला इज़ अ ब्यूटीफुल, की है शिमला ब्यूटीफुल प्लेस है ना, जहाँ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन भी लिख सकते हैं ना, ब्यूटीफुल प्लेस भी लिख सकते हैं। चलो हाँ जी, नेक्स्ट आ गया नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। ठीक है, हुण आपां पढ़िया सी ना प्रोनाउंस जिहड़े किसी भी नाउन की जगह ते यूज़ होंदे आ। हुण इत्थे तुसीं किस चीज़ का ध्यान रखोगे जदों भी नाउन फिल करना। ठीक है, तो तुसीं की करना, सब तो पहला जिस तरह फर्स्ट आ इत्थे देख लेना, सब तो अगे माई सन लिखे हुआ ना, माई सन इज़ प्लेइंग विद डैश टॉयज़। हुण सन की आ, बॉय आ, ते उहदे लई इत्थे की लगेगा, हिज है ना। जे अगे गर्ल होवे तो उत्थे की लगना, हर। ठीक है, सो इत्थे की लिख सकते हैं, हिज। अगे नंबर 2, डैश फादर इज़ वर्किंग इन मुंबई, कुछ भी लिख सकते हैं, माई फादर, हिज फादर, हर फादर है ना, कुछ मर्जी प्रोनाउन जिहड़ा इत्थे यूज़ हो सकता। नंबर 3, डैश हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। ठीक है, भी वो फॉरन गया होया हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, ही भी लिख सकते हैं, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन है ना। ओके, नेक्स्ट आ गया नंबर 4, दिस इज़ डैश हाउस, दिस इज़ माई हाउस, या दिस इज़ आवर हाउस, या दिस इज़ हर हाउस है ना, कोई भी प्रोनाउन यूज़ हो सकता। अगे आ गया नंबर 5, द गर्ल्स आर डूइंग डैश होमवर्क। हुण मोरे की है इत्थे देखो, द गर्ल्स है ना, हुण गर्ल्स लिए इत्थे की आएगा, देयर। ठीक है, द गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क। अगे नंबर 6, डैश इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। इत्थे भी कोई मर्जी प्रोनाउन लिख दो, ही, शी है ना। ओके, अगे आ गया नंबर 7, वी शुड रिस्पैक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, सानू अपने
हुण इत्थे वी सी ना, वी दे नाल इधर की आ गया आवर। अगे ही लव्स डैश नेटिव प्लेस वेरी मच, ही दे नाल इत्थे की लगेगा हिज, ठीक है। ही लव्स हिज नेटिव प्लेस वेरी मच, ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजैक्टिव्स। हाँ जी, हुण इहदे च आपां एडजैक्टिव फिल करने आ जिहड़े भी आपां नूं लगदे कि आ सकदे आ, ठीक है। नंबर 1, शी इज़ माई डैश फ्रेंड, ठीक है। वो मेरी किस तरह की फ्रेंड आ, बेस्ट फ्रेंड, है ना। नंबर 2, पुडिंग इज़ माई डैश डिश, पुडिंग मेरी किहड़ी डैश डिश आ, पुडिंग जिहड़ी आ वो मेरी फेवरेट डिश है ना, फेवरेट लिख सकते हैं। नंबर 3, द ऑफ मसूरी इज़ की हुंदी है इज़ ब्यूटीफुल, शी लाइक्स टू वेयर डैश ड्रैसेस, भी उन्होंने किस तरह दी ड्रैसेस वधिया लगदियां पहननियां, ब्लैक रैड वाइट, है ना, कोई भी लिख सकते हैं। बाइबल इज़ अ डैश बुक, होली बुक, है ना, धार्मिक। अगे क्रिकेट इज़ अ डैश गेम, ठीक है, क्रिकेट इज़ अ गुड गेम, है ना। जॉन इज़ एन डैश टीचर, हुण एन यूज़ होया इसलिए इत्थे की आएगा इंग्लिश टीचर। मैंगो इज़ अ डैश फ्रूट, जूसी फ्रूट, है ना, ठीक है। ये वाले एडजैक्टिव्स इत्थे लिख सकते हैं आप। अगे आ गया नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स। हाँ जी, हुण इन्हां च आपां वर्ब्स फिल करनी आ। नंबर 1, शी डैश आइसक्रीम, हुण वो की करदी है, आइसक्रीम खांदी है ना, तो की लिख सकते हैं इत्थे ईट्स, क्योंकि अगे की है शी, इसलिए इत्थे की लगेगा फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ई एस, शी ईट्स आइसक्रीम। नंबर 2, दे डैश अलॉट, है ना, वो की करदे आ, दे वर्कड अलॉट, है ना। माई मदर डैश फूड कुक्स, है ना, कुक्स फूड। अगे जॉन डैश इन अ फैक्ट्री, जॉन वर्क्स लिख सकते हैं, है ना, जॉन वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अगे दे डैश फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, है ना। अगे नंबर 6, वी शुड डैश अ बाथ एवरी डे, वी शुड टेक अ बाथ, है ना, भी सानू हर रोज़ नहाना चाहिए। अगे द स्कूल प्यून डैश द बेल रिंग्स, है ना, रिंग्स द बेल। अगे नंबर 8, सीमा डैश फॉर अ वॉक डेली, सीमा गोज, है ना, गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। इन्हां च वर्ब्स आ गई हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ गए नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स। हाँ जी, हुण इन्हां दे विच आपां एडवर्ब्स फिल करने आ। नंबर 1, सोहन वॉक्स डैश, सोहन किस तरह चलदा आ, फास्टली भी हो सकता है ना, स्लोली भी हो सकता, जो मर्जी लिख लो। अगे एवरीवन शुड वर्क डैश, हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ किस तरीके नाल काम करना चाहिए, वर्क हार्ड, है ना। अगे शी सिंग्स, इत्थे की आएगा किस तरह वो गाउंदी आ, स्वीटली, है ना। हिज डैड इज़ अ डैश रिस्पैक्टेबल मैन, वेरी रिस्पैक्टेबल मैन। अगे नंबर 5, our teacher speaks dash politely, speaks very politely. Again number 6, my sister sleeps early, है ना, भी जल्दी सो जाती है। अगे नंबर 7, John is a dash hard working boy, John is a very hard working boy. Girls sang स्वीटली भी लिख सकते हैं इत्थे भी, है ना, नाइसली लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं एडवर्ब, ठीक है। इसे थोड़े एडवर्ब्स फिल करने। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रैपोजिशन। हाँ जी, हुण आपां इत्थे प्रैपोजिशंस फिल करनियां, ठीक है। नंबर 1, माई ग्रैंडफादर इज़ हार्ड डैश हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, ऑफ। माई मॉम इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इत्थे भी ऑफ आ सकदा। नंबर 3, अ बर्गलर ब्रोक डैश आवर हाउस लास्ट नाइट, ब्रोक इनटू, ठीक है, ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट। नंबर 4, द स्टूडेंट्स शुड लिसन डैश टीचर्स अटेंटिवली, की आएगा टू देयर टीचर्स, है ना, टू देयर टीचर्स attentively. Number 5, yesterday we went dash the rose garden,
We went to the rose garden. Number 6. Ayushi is playing dash the piano. Ayushi is playing on the piano. Number 7. Children have been playing since morning. कि बच्चे सवेर तो खेड रहे हैं, है ना. My uncle has been living dash Canada dash 15 years, है ना. My uncle has been living in Canada for 15 years. Number 9. I will play after finishing my homework. ठीक है भी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करन तो बाद खेडांगा. I am standing dash Anshu. Anshu is in front of me. I am standing behind Anshu. ठीक है भी मैं अंशु दे पीछे खड़ा हाँ ते अंशु मेरे सामने, है ना. ऐसी है प्रपोजिशंस. अगे देखो, अगे आ गया नंबर 8. Fill in the blanks with the suitable conjunction. हाँ जी हुण आपां इन्हां च कंजंक्शन फिल करनी आ. नंबर 1. My younger brother is both intelligent dash hardworking. क्या आएगा इच? Both intelligent and hardworking. Number 2. He says dash he is a doctor. He says that he is a doctor. Okay, number 3. Dash Seema dash Rita is at fault. Either Seema or Rita, ठीक है, is at fault. Number 4. Our servant is poor but honest. ठीक है, अभी साडा नौकर गरीब है पर ईमानदार है. Number 5. He dash his nephew manage the shop. He and his nephew. Again, number 6. Ram went on leave dash he was injured because he was injured. ठीक है कि राम छुट्टी ते गया क्योंकि वह जख्मी हो गया सी. Number 7. You will get the tickets dash you reach there before 6 o'clock. क्या आएगा इच? You will get the tickets if you reach there before 6 o'clock. Number 8. Dash he was late yet he was able to catch the bus. Although he was late yet he was able to catch the bus. ठीक है, ऐसी कंजंक्शंस. हाँ जी, नेक्स्ट आ गया लास्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल इंटरजैक्शन. ठीक है, हुण इन्हां दे विच आपां सही इंटरजैक्शंस फिल करनी है. नंबर 1. डैश वी हैव वन द गेम हुर्रा. ठीक है, पिछे इहदे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, हुर्रा वी हैव वन द गेम. नंबर 2. डैश द मैन इज डेड. अलास, इस तो बाद भी जिथे भी इंटरजैक्शन यूज़ होएगी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना. ठीक है. नंबर 2 च अलास द मैन इज डेड. नंबर 3. डैश दे हैव कम. इत्थे की लिख सकते हैं? लो दे हैव कम. नंबर 4. डैश इज दिस द प्लेस. ओ इज दिस द प्लेस. नंबर 5. डैश वेल डन. ब्रेवो वेल डन. Number 6. Dash he has lost all his money in gambling. भी ਉਹ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਾਰ ਗਿਆ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? Number 6. Alas, है ना, alas he has lost all his money in gambling. Number 7. Dash you are hurt. Oh, you are hurt. Number 8. Dash he has failed again. Alas he has failed again. ठीक है, ये सी साड़ियाँ इंटरजैक्शंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ी हद तक तो समझ आ गया होना। बाकी तुसी जितनी इन्हां दी प्रैक्टिस करोगे उन्ना तुहानूं होर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन्हां दी। ठीक है जी। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।